Hello students, today we will learn about the rational numbers in standard form. How to write the rational numbers in standard form. First of all, we will see the definition here. A rational number is said to be in standard form if the denominator, that is q, is positive. First of all, q क्या होना चाहिए? Positive होना चाहिए. दूसरी बात, second thing is the GCD or SCF, highest common factor of P and Q, should be equal to 1. अगर ये दो चीजें कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम क्या कहेंगे? We will say the rational numbers are in standard form. For example, I take an example. For example, let us take a number 2 upon minus 3. 2 upon minus 3 और नीचे वाला जो क्यू है डिनोमिनेटर वो क्या है? नेगेटिव है. तो दिस नंबर इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. टू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म व्हाट वी डू? We will multiply to write in standard form we will multiply both numerator and denominator. Multiply numerator and denominator by minus 1. We get, that is 2 upon minus 3 है यहाँ. तो क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? -1 से. इधर भी -1 से, राइट? तो 2 वन द 2 विद नेगेटिव साइन. ये 3 भी नेगेटिव का है और 1 भी नेगेटिव का. 3 भी नेगेटिव का, 1 भी नेगेटिव. नेगेटिव क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव. नाउ सी हियर द जीसीडी. जीसीडी जानते हैं ना आप क्या होता है? व्हाट इज जीसीडी? GCD or SCF is of 2 and 3. Since 2 and 3 are prime numbers, therefore GCD is already 1. Therefore this rational number is in standard form already, right? Let us take another example. I am going to write here 22 upon 66. In this question, P upon Q is not negative. One thing is satisfied already. Now second thing is what? That GCD should be 1. GCD क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तो देखो 22 और 66 का GCD निकालते हैं. देखो GCD of 22 and 66 क्या होएगा? Let us see here. कैसे निकालते हैं? जीसीडी निकालने का तरीका क्या सी है ऑन द रफ पेज. 66 को किससे डिवाइड कर देना हमने? विल डिवाइड इट बाय 22. 22 3 का 66, राइट? देयरफॉर जीसीडी इज व्हाट? जीसीडी जिससे डिवाइड हो जाए पूरा पूरा वो जीसीडी होता है. देयरफॉर जीसीडी इज 22. GCD is 22. It means जो GCD आया उसके साथ हमने न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देना है और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देना है. अंडरस्टैंड? सो नाउ क्या करेंगे? वी विल डिवाइड न्यूमरेटर and denominator by 22. See there, 22 upon 66. दोनों को किससे डिवाइड कर दो? 22 से. इसको भी 22 से और इसको भी 22 से. तो 22 को 22 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.
और 66 को 2 से डिवाइड करने से क्या आता है, यहाँ आया देख लो क्या लिखा हुआ है 3. Now the GCD of 1 and 3 is 1. Therefore this is the rational number in standard form. Now let us start worksheet 3, question 1, to write the following in standard form. The following rational number is, first one is 33 upon 77. Here Q is not negative, there is no need for the first step. Next step is what? To find GCD or HCF. GCD of 33 and 77 find out करेंगे हम. How to find out? In similar fashion, 77 बड़ा है, 33 छोटा है, तो 33 के साथ 77 को डिवाइड कर दो. Write down here 77 divided by 33. ठीक है, तो 33 2 का 66 आ गया. 66 क्या बचा, 1 1, 11 आ गया. अब 33 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ 11 के साथ डिवाइड कर देंगे. This is a method to find out the GCD. You learned in 6th class also. 11 3 are 33. So remainder क्या आ गया, 0. Since remainder is 0 here, that's why this one is the GCD. GCD is 11. Now what we do? We will divide both numerator and denominator by 11. Right? Write down here. Divide numerator and denominator by 11. 11 से दोनों को डिवाइड कर दो जी. 33 upon 77 divided by 11. इसको भी 11 से और इसको भी 11 से. Right? That is equal to what? 11 3 the 33. तो यहाँ क्या आ गया, 3. और 11 7 the 77. Therefore, this is the required rational number in standard form. This is the required rational number in standard form. Right? Second part, 64 upon -20 to write in standard form. अब नीचे 20 क्या है, नेगेटिव का है, तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई इट बाय -1, बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर. व्हाई? टू रिमूव नेगेटिव फ्रॉम डिनोमिनेटर. कहाँ से नेगेटिव, कहाँ से रिमूव करना है, डिनोमिनेटर में से. तो मल्टीप्लाई, फर्स्ट स्टेप इज multiply numerator and denominator by -1. We get that is 64 upon -20 into -1 -1. तो ये कितना आ गया, -64. इधर कितना आ गया, 20. माइनस माइनस प्लस. फर्स्ट स्टेप हो गया. अब दूसरा स्टेप क्या है जी, दूसरा स्टेप है टू फाइंड द जीसीडी ऑफ बोथ. ठीक है. नाउ फॉर द सेकंड स्टेप, नाउ जीसीडी और एचसीएफ भी बोलते हैं, ऑफ 64 and 20. That is equal to what? How to find out GCD? See here, 64 is bigger number, divide it by 2. 20 का टेबल पर 23 दा 60, तो 3 पे चला जाएगा जी. आ गया 60. तो कितने बचे, 4. अब 4 छोटा है 20 से, तो 4 के साथ 20 को डिवाइड कर देंगे. ठीक है. तो 20 को अंदर लिख दो. 20 4 5 दा 20, तो नीचे क्या आ गया, 20. 0. It means 4 is GCD. This number is GCD. Remember it. अब GCD के साथ क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को. राइट डाउन
Now divide numerator and denominator by 4. 4 is the GCD, तो 4 के साथ डिवाइड कर दो दोनों को. तो यहाँ लिखो पहले -64 अपॉन 20 डिवाइडेड बाई 4. इधर भी लिखो डिवाइडेड बाई 4. अब टेबल पढ़ोगे तो 16 4 का क्या होता है 64. 16 4 द 64, यानी कि ये 64 को डिवाइड करो जब 4 से तो 16 आएगा. -16 आ गया. नीचे आ जाओ. 20 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 5 द 20 होता है. इट मीन्स 5 पे आएगा. वैसे भी देख लो यहाँ भी 5 वाला. This means this is the required rational number in standard form. This is the required rational number in standard form, right? Now to write third question, third part of same question. -27 upon -15 to write in standard form. For that, both are negative. ये भी माइनस है तो क्या करेंगे टू रिमूव नेगेटिव. नेगेटिव कट गए तो क्या आ गया ये 27 अपॉन 15. फर्स्ट थिंग देयर इज नो नेगेटिव साइन इन द डिनोमिनेटर. नाउ व्हाट टू डू. नाउ वी विल फाइंड आउट द जीसीडी ऑफ बोथ P एंड Q. P क्या है 27, Q इज 15. नाउ वी विल फाइंड आउट GCD. तो राइट डाउन GCD ऑफ 27 and 15. That is equal to what? Let us see. 27 divided by 15. 15 के टेबल में आता है 15 वन द 15 पे जाएगा. ज़्यादा दूर नहीं जा सकते आप. 15 टू द 30 होता बढ़ जाएगा 2 और ये 1 12. अगेन 12 इज लेस देन 15, तो 12 बाहर आएगा और 15 अंदर आ जाएगा. दिस इज अ वे टू फाइंड आउट HCF और GCD. राइट. तो 12 वन द 12 कितने बचे 3. अब 3 इज लेस देन 12, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 12 को. 12 अंदर कर दो. 3 4 द 12, तो remainder is 0. It means 3 is the GCD. 3 is GCD. That means what? That means we will divide both numerator and denominator by 3. Now 3 is GCD. First of all, write down here. Divide numerator and denominator by 3. करो इसको 27 यहाँ 15 लिखो and divided by 3 divided by 3. That is 27 3 कौन सा 3 के टेबल पढ़ो. 3 9 द 27. इट मीन्स 9 आ गया यहाँ. एंड 3 का टेबल पढ़ो. 3 5 द 15. दैट मीन्स यहाँ क्या आ गया जी 5. दिस इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. दिस इज द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. समझ आ गया ना. स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करना है. पहले तो नीचे नेगेटिव नहीं होना चाहिए. नीचे क्या नहीं होना चाहिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए. दूसरा इन दोनों का जीसीडी क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए. तो जीसीडी 1 कैसे आएगा. अगर ना हो तो हम इनका दोनों का क्या करेंगे जीसीडी निकालेंगे और जो जीसीडी आए उससे डिवाइड कर देंगे दोनों को. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज now to write 105 with a negative sign over 98 in standard form. Now to write -105 upon 98 in standard form. For that what we do? There is no negative sign in the denominator. There is no negative sign in the denominator means we have to find out only GCD of this. So find out GCD of 105 and 98. For that what we do?
we will divide 105 by 98. Right here, 105 divided by 98. 98 2 का बढ़ जाएगा तो किस पे जाएगा 1 पे. तो राइट डाउन हेयर 98. अब कितने आ गए जी 7. 7 is less than 98. So we will divide 98 by 7. 98. ठीक है. 7 का टेबल पढ़ो. कहाँ 98 आते हैं. 14 7 the 98. So 14 7 the 98, that is 0. It means GCD is 7. Therefore GCD is what? That is 7. Now what we do? GCD means we will divide numerator and denominator by 7. Right? So write down here. Divide numerator and denominator by 7. ठीक है. So write down here minus 105 upon 98 divided by 7. इसको 7 से डिवाइड कर दो. तो if you remember the table, तो 15 7 the 105. 15 के टेबल में आ जाता है तो 15 ऊपर नेगेटिव हो गया. और ये किस पे आएगा 14 के टेबल में. 14 7 the 98. तो यहाँ क्या आएगा 14. This is the required rational number in standard form, right? This is the required rational number in standard form. The next question is question number 2. Find x such that the rational number in each of the following pairs become equivalent. Here the two numbers are given 9 by 5 and x by 10. Here we have to find out x. To find out x, it is given that they are equivalent. Since it is given 9 by minus 5 and x by 10 are equivalent, and therefore 9 by minus 5 is equal to x by 10. Now we can find out the value of x. How to find out the value of x? x को इधर ही रहने देना आपने. बाकी फालतू क्या है इधर 10 है. 10 को क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले आना. या दूसरा तरीका है, अगर इफ यू वांट टू रिमूव 10 फ्रॉम हियर यू विल मल्टीप्लाई इट बोथ. दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड को भी और लेफ्ट हैंड साइड को भी 10 से. जब मल्टीप्लाई करोगे 10 से 10 कट जाएगा. राइट. वाई 10 से किया मल्टीप्लाई, 10 से क्यों किया मल्टीप्लाई, टू रिमूव दिस 10. राइट. तो राइट डाउन मल्टीप्लाई both sides by 10 we get. तो क्या हो गया जी 9 by minus 5 into 10. 10 से अब 10 उधर चला गया. अब इधर वाला 10 रिमूव करना तो कैसे करेंगे 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. 10 से 10 चला गया. क्या रह गया अकेला x. इधर आ जाओ 5 to the 10. अब क्या रह गया जी इधर देखो ध्यान से. दिस इम्प्लाइज, इसका नाम होता है दिस इम्प्लाइज 9 to the 18 माइनस नीचे रह गया इज इक्वल टू एक्स. अब माइनस को ऊपर लाना तो क्या करेंगे सीधा ऊपर नीचे. पहले तो ठीक ढंग से लिख लो इसको. विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 18 अपॉन -1. अब -1 को रिमूव करना तो क्या करेंगे ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो. तो क्या आ गया इधर ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 18 मान रहा 18 में नेगेटिव साइन नीचे मान आ गया. दैट इज देखो फिर therefore this implies x is equal to कितना आ गया -18. x is equal to -18. This is the answer, right answer. Right. The second question is
again in second question we have to find out the value of x. Since they are equivalent, according to the question they are equivalent. This implies since both are equivalent, therefore 8 by 7 is equal to x by minus 35. Now, what to do? We want to find out the value of x. To find the value of x, we have to remove minus 35 from here. How we will remove minus 35? If I multiply both sides by minus 35. Okay? Write down here. Multiply both sides by minus 35. We get. अंडरस्टैंड वाई वी मल्टीप्लाई बाय 35. आप समझे क्यों माइनस 35 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमने यहाँ से माइनस 35 को रिमूव करना था, राइट, और x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस 35 से मल्टीप्लाई कर. अगर इधर माइनस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी हमें माइनस 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, राइट. 8 by 7 minus 35. In similar fashion we will multiply here also minus 35. Right? Write down. When we multiply by minus 35, here minus is also removed from here. Minus 35. 7, 5 the minus 35. तो यहाँ क्या आ गया? minus 5. तो क्या आ गया? This implies 8 into minus 5 is equal to x. That is 5 the 40, which implies that minus 40 आ गया जी. This implies x कितना आ गया था? X is equal to minus 40. This is the value of x, required value of x. This is the required value of x. Right? Understand? Now the third question is, again we have to find out in third question the value of x. 36 upon x and 2 are the given equivalent rational numbers. To find out x, we have to do what? We have to reciprocate. First of all, since they are equivalent, so we will write down since both the numbers are equivalent rational numbers. Both the numbers are equivalent and therefore 36 upon x is equal to 2. Right? Now what to do? x को ऊपर ले जाना है, तो क्या करेंगे हम? दोनों को क्या कर देंगे? रेसिप्रोकेट करते हैं. रेसिप्रोकेट का मतलब है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे. ठीक है, ये वाला नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा. इसी तरह अगर इधर रेसिप्रोकेट करेंगे तो उधर भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इक्वेशन इम्बैलेंस हो जाएगी. ठीक है, सो रेसिप्रोकेट, राइट डाउन रेसिप्रोकेट. बोथ साइड्स वी गेट x upon 36 is equal to 1 upon 2. Now इधर क्या चाहिए हमें? अकेला x चाहिए, 36 तो चाहिए नहीं है. तो क्या करेंगे हम? 36 को कैसे रिमूव करेंगे? अगर 36 को 36 के साथ काट दिया जाए तभी होगा ना रिमूव. तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 36. क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बोथ sides by 36. We get 36 into x upon 36. That is equal to 1 upon 2 into 36. 36 का 36 कट गया यहाँ.
18 टू द 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई जी 18, x की वैल्यू क्या आ गई 18. दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, राइट. The fourth part, given rational numbers are x by 6 and minus 13. They are given equivalent rational numbers since they are equivalent rational numbers. Therefore, x by 6 is equal to minus 13. Now, क्या करेंगे आगे? We need not 6 here. हमें 6 की यहाँ नहीं जरूरत है. क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि we want to find out the value of x. So what we do? हम क्या कर रहे थे पीछे भी? अगर इस चीज की जरूरत है, इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड को. So we will multiply both sides. By 6, we get 6 into x upon 6, that is equal to minus 13 into 6. 6 से 6 कट गया, क्या रह गया इधर? x is equal to 13, 6 का कितना होता है? 36 the 78, right? 36 the 78 है ना? ध्यान से सुन रहे हैं आप, ठीक है? 78. Okay. Question number 3. Check whether the following rational numbers are in standard form. If not, write them in standard form. First one is minus 3 upon 90. See, to write in standard form, what are the two conditions? First of all, denominator should not be negative. That is not okay. Second one is GCD should be equal to 1. Now find out the GCD of this. पहली कंडीशन तो हो गई पास, नीचे नेगेटिव नहीं है, तो GCD फाइंड आउट करो. पहली बात तो GCD फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, बोथ आर प्राइम एंड GCD ऑफ प्राइम नंबर इज GCD ऑफ 3 and 19 क्या होगा? दोनों प्राइम है, प्राइम नंबर का GCD क्या होता है? 1 होता है. यस, therefore this above rational number is in standard form. Right? Now the second question is 4y minus 7. Now see here, conditions are two. One is नेगेटिव नीचे नहीं होना चाहिए, दूसरा GCD 1 होना चाहिए. तो नेगेटिव नीचे है, तो नेगेटिव को, इस नेगेटिव को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? मल्टीप्लाई. किससे? -1 से. मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -1 वी गेट. तो क्या किया हमने? दैट इज इक्वल टू 4 upon -7 मल्टीप्लाई बाई -1, और इसी नीचे वाला भी -1 से मल्टीप्लाई. 4 into -1 that is -4 and -7 into -1 7 आ गया. Now GCD चेक करो. GCD of both the number is 1. Since write down GCD of 4 and 7 is 1, therefore -4 upon 7 is in standard form. Right? Next rational number is 14 upon 35. तो हमें दो कंडीशन तो पता ही है, माइनस नेगेटिव नीचे नहीं होना चाहिए, दूसरी GCD 1 नेगेटिव तो इसमें है ही नहीं,
तो रह गई बात किसकी, जीसीडी की। तो जीसीडी फाइंड आउट करो इनका, जीसीडी ऑफ 14 and 35. How to find out GCD of 14 and 35? We know by using this method. 35 को किससे डिवाइड कर देना जी, 14 से, ठीक है। अब टेबल पढ़ो 14 का, 14 2 दा 14 3 का बढ़ जाएगा, 14 2 पे आ जाएगा 28। तो यहाँ कितना आएगा, 7 रिमाइंडर। अब 7 से किसको डिवाइड कर देंगे, 14 को, क्योंकि 14 बड़ा है 7 से, तो 14 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 टू द 14। अब 0 आ गया, यहाँ 0 आ जाए इट मीन्स जिस नंबर से डिवाइड किया वो जीसीडी होता है, दिस नंबर इज जीसीडी, देखो 7। अब क्या करेंगे, हमने पहले भी किया है क्वेश्चन, इस नंबर से दोनों को डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by 7, we get 14, यहाँ ले दो 35, 7 से डिवाइड कर। 2/5 is the required rational number. 2/5 is the required rational number. Next is fourth question. To write, is it in standard form or not? We have to check. Since it is not in standard form, so what we do? First of all, we will remove negative from denominator. First of all, we will remove negative from denominator. To remove the negative from denominator, what we do? We will multiply both numerator and denominator by -1. Multiply numerator and denominator by -1. What we get? 8/-72 मल्टीप्लाई करो -1 से इधर भी, और मल्टीप्लाई करो -1 से इधर भी। 8 1 दा 8 विद नेगेटिव साइन, एंड 72 इधर भी 72 नेगेटिव का है, ये 1 है, 72 इंटू, तो क्या बन गया ये +72, -72 इंटू -1 इज 72, तो नेगेटिव तो रिमूव हो गया नीचे से। अब व्हाट टू डू, we have to find out GCD of both. तो GCD कितना है, आओ फाइंड आउट करें, GCD of -8 and 72. How to find out GCD? The same method is there, डिवीजन मेथड यूज करते हैं हम, 8 से डिवाइड कर दो, 8 9 दा 72, सिंपल टेबल इज देयर, यू शुड रिमेंबर इट। द टेबल आपको आने चाहिए, है ना, टू डू दिस। तो therefore the GCD is 8. Now माइनस नहीं आना था यहाँ, माइनस नहीं था, चलो। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by 8 इक्वल टू -8 और नीचे 72 डिवाइडेड बाई, डिवाइड कर दो, इधर भी डिवाइड कर दो 8 से और नीचे भी 8 से। 8 1 दा 8, तो इधर तो 1 आ गया विद नेगेटिव साइन, 8 9 दा 72, तो यहाँ 9 आ गया। -1/9 is the required rational number in standard form. This is the required rational number in standard form, right? Okay. Next question, fourth question, fill in the blanks. Here all the three are equivalent to each other, ठीक है। 2/7 is equal to 8/nothing, इसको हम a मान लेते हैं, लेट अस सपोज a, कुछ लिखा तो a फाइंड आउट करना, और here nothing is given here, it means we have to find out the value of this also, so we will write down b here, ठीक है। now इसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट इज इक्वलेंट टू दिस, also equivalent to this, right? So what we do, first of all, from, we will write down from, this one is first, from 1 and 2, this is second, so 2 we get, from first and 2 we get, पहले दोनों को ले लो, इनको दोनों को लिखो यहाँ, 2/7
इज इक्वल टू 8/a. ठीक है. टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a, व्हाट वी डू, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या करना है, रेसिप्रोकेट कर देना है, नीचे की ऊपर, ऊपर वाली नीचे. तो रेसिप्रोकेट, क्योंकि हमें एक a की वैल्यू चाहिए, रेसिप्रोकेट बोथ साइड्स. व्हाट हैपन, 2 नीचे चला गया और 7 ऊपर आ गया. 7 ऊपर आ गया ना जी, तो नीचे क्या चला गया, 2. इसी तरह से सिमिलर फैशन a ऊपर चला गया और 8 नीचे आ गया. नाउ क्या रिमूव करना है इधर से, क्योंकि a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या रिमूव करना है, 8 रिमूव करना. तो 8 रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बोथ बाय 8. तो मल्टीप्लाई both sides by 8. 8 into 7/2, that is equal to a upon 8 into 8. राइट. अब 8 से 8 कट गया, 8 से 8 कट गया तो क्या रह गया, इधर देखो 2 4 8 आ गया. तो क्या बन गया, दिस इम्प्लाइज 7 4 28. 28 इज इक्वल टू a. इसका मतलब है a की वैल्यू क्या आ गई, 28. a की वैल्यू क्या आ गई, 28. a की वैल्यू कितनी आ गई है, 28. नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b. ये तो खत्म हो गया. अब कौन कौन सा रहा, फर्स्ट एंड थर्ड. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड third we get 2/7 is equal to b/63 with a negative sign. Now to remove 63 with negative sign from this side, what we do, we will multiply both sides by -63. राइट. तो क्या आ गया जी, 2/7 इंटू -63 इज इक्वल टू b/-63 तो -63. 63 से 63 कट गया जी, क्या रह गया इधर, इधर तो रह गया b. अब इधर 7 9 63 तो इधर क्या 9. इट इम्प्लाइज 2 इंटू -9, -63 से मल्टीप्लाई किया होगा ना, -9 आ गया b. दिस इम्प्लाइज b इक्वल टू 2 9 18 विद नेगेटिव साइन. तो b की वैल्यू कितनी आ गई जी, 18. राइट, विद नेगेटिव साइन, -18. नाउ द b पार्ट इज 36 अपॉन ब्लैंक. लेट अस सपोज ब्लैंक को हम x मान लेते हैं, इज इक्वल टू -4 अपॉन 9 इज इक्वल टू 84 अपॉन ब्लैंक. इसको y मान लो. You have to find out the value of x and y here. So which one is given in which the numerator and denominator are both? That is second. Second is second. In this case, second will play the main role. Second क्या करेगा, मेन रोल प्ले करेगा. फर्स्ट के साथ भी जाएगा और थर्ड के साथ भी जाएगा. पहले इन दोनों को ले लेते हैं. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we get 36 upon x is equal to -4 upon 9. We want the value of x here. So what we do? We will reciprocate. ऊपर का नीचे, नीचे वाला ऊपर कर देना है. ठीक है, तो रेसिप्रोकेट कर दो इसको. बोथ. हमने जब रेसिप्रोकेट करना तो इसको नहीं करना, इसको भी करना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा. x ऊपर चला गया जी, 36 नीचे आ गया, इज इक्वल टू 9 अपॉन 4. नेगेटिव चाहे ऊपर ही रहने दो, कोई टेंशन नहीं. ठीक है, दिस इम्प्लाइज. अब क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ x ओनली हेयर. सो व्हाट वी डू, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -36. multiply both sides by
माइनस 9/4 इंटू 36। तो 36 से 36 घट गया बेटा, ठीक है। यहाँ 4 9 36, तो क्या आ गया यहाँ, यही कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज एक्स तो इधर एक्स ही रहेगा अकेला, क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए थी। 9 9 81 और माइनस है तो माइनस 81, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 81, राइट। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड वी गेट, मैंने पहले बोला था जिसमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए होंगे वही रोल प्ले करेगा। तो ये सेकेंड है और ये थर्ड। -4/9 इज इक्वल टू -84/y। हमें y की वैल्यू चाहिए, ना कि 1/y की, तो रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। रेसिप्रोकेट बोथ साइड्स, रेसिप्रोकेट बोथ साइड्स। तो क्या होगा, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, तो 9/4, इसको माइनस को इधर ले आना। तो इसी तरह से -y/84, ठीक है। अब क्या करना है, हमने 84 को भी रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, पहले तो माइनस माइनस चले गए, दोनों कट गए आपस में। अब 84 को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वी विल मल्टीप्लाई बाय 84 बोथ साइड, टू बोथ साइड। तो राइट ऑन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 84। तो क्या आ गया था देखो, 84 इंटू 9/4 इज इक्वल टू y/84, इधर भी 84 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 84 से 84 कट गया, यहाँ क्या आ गया, 4 2 8 1, 21 इंटू 9 आ गया। अब क्या आ गया जी, इधर चेक कर लो। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 इंटू 21, 9 इंटू 21। तो y इज इक्वल टू 9 1 9 9 2 18, तो y की वैल्यू आ गई 189, right? Now here the third question is 105 upon blank. That means you will, let us suppose this is x and this is y. We have to find out the value of x and y. Here in the third part, both numerator and denominator are given. It means it will play the vital role. It will play, we will take 1 and 3 and 2 and 3. So what we do, from first and third, पहले first and third लेंगे, we get 105 upon x is equal to -5 upon -11। माइनस से माइनस कट गया पहले तो। अब what we do, we need the value of x, not of 1/x। तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे। तो रेसिप्रोकेट both sides, we get, ठीक है, x upon 1/105 इज इक्वल टू 11/5 आ गया। ये भी नीचे हो गया ना ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, टू रिमूव 105, व्हाट वी डू, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 105। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई both sides by 105, 105 into x upon 105, that is equal to 11/5 into 105। यहाँ तो 105 से 105 कट गया, इधर क्या गया, 2 5 10, 5 on the 5, तो क्या रह गया, 21 आ गया। This implies x is equal to 11 into 21. It implies what? Implies x is equal to 11 1 11, 11 2 22, तो कितना हो गया, 231, right? x की वैल्यू कितनी आ गई, 231। Now from
second and third, we get y upon 99 is equal to minus 5 upon minus 11. माइनस से माइनस कट गया बेटा, राइट, माइनस से माइनस कट गया, क्या रहेगा? अब क्या करना, वी नीड द वैल्यू ऑफ y here, so what to do, we have to remove 99 from here. तो 99 को रिमूव तभी कर सकते हैं जब हम 99 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई। अगर इधर 99 से करेंगे तो इधर भी हमें 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो राइट डाउन मल्टीप्लाई both sides by 99, we get 99 into y upon 99। यहाँ क्या करेंगे 5 upon 11 तो लिखा ही हुआ, और क्या करना हमने 99 से मल्टीप्लाई करना। तो 99 से तो 99 कट गया, 11 9 द 99, तो क्या आ गई y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 9 5 द 45, तो y की वैल्यू भी आ गई 45। विद दिस क्वेश्चन वी फिनिश द वर्कशीट 3, राइट। थैंक यू।